with this last lecture of basic concepts in geometry. Now students, in this lecture, as you clearly see, we'll be starting with pairs of angles and we'll be describing various pairs of angles, right? So let us start with pairs of angles. Now, we can say, what do you mean by a pair? A pair means two. So pairs of angles means we are talking about two angles at the same time. So whenever these two angles are at the same time, we give them a certain name, okay? And that's why we call them as pairs of angles. Now, please understand adjacent angles. Now, when we say adjacent angles, let us understand what do you mean by adjacent angles. Now, adjacent का मतलब है बाजू वाला. जैसे हमारे बगल में जो रहते हैं उनको बोलते हैं बाजू वाले, neighbor. So same way, adjacent means neighbor, neighboring. But then there is certain condition for it. So understand when do we say adjacent angles. Now students, आपके सामने screen पर we can clearly see we have angles. Now tell me, of course we are talking about adjacent, but then I want you to understand this figure first. Now please understand this. We have how many angles in the figure? Yes, come on, tell me, how many angles? Of course, clearly many students will say, I want the answer in chat box. Come on. How many angles are there? Yes, very good. Few of them are giving the right answers. Few of them are giving wrong answer. It's okay. Fine. But then answer which you are giving is, that is very good thing about it. Now students, many of you have answered it, but then those who have answered wrong, for them I'll make the clarity. Okay, I'll give the clarity exactly. Those who have said we have two angles in this figure is the wrong answer, because I want you to see actually there are three angles. One is angle AOB. Hear it properly. One is angle AOB. Second is angle BOC. And the third one is angle AOC. So here we have three angles in the figure. But as we are discussing about pairs of angles, we'll be discussing about only two angles. Is it very clear? So students, what do you mean by adjacent angles? So when do we say the angles are adjacent? Now we say two angles are adjacent under certain conditions. अब ये certain conditions मतलब कौन से conditions है जिसको अगर satisfy किया तो we say the angles are adjacent. देखते हैं. सबसे पहला condition, they should have a common vertex. अगर हमने देखा होगा सारे एंगल का मिडल लेटर O आ रहा था, एंगल AOB O बीच में, एंगल BOC O बीच में, एंड एंगल AOC O बीच में. तो कॉमन वर्टेक्स O. वर्टेक्स मतलब द मिडल लेटर ऑफ द एंगल. ओके, जहां से एंगल दोनों साइड्स एक दूसरे को मिलते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, दैट इज वर्टेक्स. सो O इज द कॉमन वर्टेक्स हियर. इज इट वेरी क्लियर? द सेकेंड कंडीशन, दोनों एंगल्स का एक साइड कॉमन होता है. ना बच्चों, नॉर्मली हमने देखा होगा हमारे नेबर जो होते हैं, हमारे घर के और नेबर के घर में एक कॉमन दीवार होती है, जिसके वजह से हम बोलते हैं वो बाजू वाले हैं. तो बाजू वाले होने के लिए दोनों के बीच में कॉमन कुछ होना चाहिए. सामने वाले और हमारे बीच में कुछ कॉमन नहीं होता है. दे आर सेपरेट, वी आर सेपरेट. बट दोनों के बीच में कॉमन होने के बाद हम बोलते हैं बाजू वाले हैं. सो जैसे हमारे बीच में, घर के बीच में और बगल के घर के बीच में एक कॉमन दीवार होती है, we say it's a common wall. So same way here, we have two angles. If you see angle AOB and angle BOC, I repeat again, angle AOB and angle BOC, ये दो एंगल्स के बीच में we have a common side OB.
साइड ओबी इज द कॉमन साइड. सो सेकेंड कंडीशन है दोनों एंगल्स के बीच में कॉमन साइड होना चाहिए. इज दिस वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों एंगल्स का इंटीरियर अलग अलग होना चाहिए. मतलब एंगल एओबी का इंटीरियर अलग है, एंगल बीओसी का इंटीरियर अलग है, सेपरेट है, कोई मिक्सचर नहीं है. सो दो एंगल्स बिल्कुल अलग है, दे हैव अ कॉमन साइड, कॉमन वर्टेक्स एंड टोटली अलग है, इंटीरियर डिसजॉइंट है. सो दिस इज अवर थर्ड कंडीशन. सो प्लीज स्टूडेंट्स रिमेंबर, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा डिफाइन एडजेसेंट एंगल्स, तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है. Two angles are called adjacent angles if they have a common vertex, a common side, and their interiors are disjoint. याद रखना, common vertex होना चाहिए, common side होना चाहिए, and interiors disjoint. Disjoint मतलब अलग अलग, joint नहीं है, अलग है, separate है. जैसे हमारे घर का अलग इंटीरियर होता है, उनके घर का अलग. इंटीरियर मतलब घर का सजावट नहीं है, इंटीरियर मतलब हमारे घर का स्पेस अलग है, उनके घर का स्पेस अलग है. सो हमारा घर और उन बगल वाले का घर अलग बोलते हैं बिकॉज ऑफ कॉमन साइड, कॉमन वॉल इन बिटवीन. वैसे ही साइड ओबी ने दोनों इंटीरियर्स अलग किए हैं. सो वी से such angles are adjacent angles. Is it very clear to all of you? So students, please write down the definition which you can see. टाइटल लिखो adjacent angles और जैसे स्क्रीन पर दिखा है वैसे लिखो. एंड ड्रॉ द फिगर, बगल में एक फिगर भी ड्रॉ करना. I'll give you 2 minutes for this. Okay, write it down fast and draw the figure as well. वो इंटीरियर्स को अलग कलर वगैरह कुछ करने का जरूरत नहीं, ओनली ड्रॉ द रेज, दैट्स इट. एंगल एओबी और एंगल बीओसी जैसे दिख रहे फिगर में वैसे ड्रॉ करना है, दैट्स इट. Finished, all of you? Okay. Fine. So, agar there is a definition for adjacent angles, henceforth I want all of you to remember, if there is a definition for adjacent angles, this is the definition which will give. So whatever we have in the figure, चलो हमारे फिगर हमने जो ड्रॉ किया है, एंगल एओबी एंड एंगल बीओसी, ये कौन से एंगल से बोलो? एंगल एओबी एंड एंगल बीओसी कौन से एंगल से? यस, दे आर एडजेसेंट एंगल्स. व्हाई आर दे एडजेसेंट एंगल्स? बिकॉज दे satisfy 3 conditions. Which are the 3 conditions here? बोलो, come on, type करो. Which are the 3 conditions? Come on, I want the answers from you all. Interaction होना चाहिए. Type करो. Which is the first condition? Perfect common vertex.
Yes, someone is very smart. Written above बोलते हैं, that's good. But then बेटा I want you to type it so that revision हो जाएगा. Don't look in the notebook or don't look at the screen. थोड़ा revise कर लो. Super, very good. But then सब लोग common side, common vertex बोल रहे हैं. तीनों एक साथ टाइप करो, तीनों. Yes. Yes, someone said interiors are common. That's wrong, beta. Interiors are not common. Interiors are disjoint. Make it very clear. देखो, ये जब आप टाइप करते हो ना, समझ में आता है गलतियां. I'm noting it down. Someone said intersection of interior. That is also wrong. Is it very clear? Interiors are disjoint. Perfect. Very good. I'm happy the way you are typing. That's good. Common vertex, common side, and interiors are disjoint. That's awesome, all of you. Okay. These angles are called adjacent angles. तो बताओ इसमें common vertex O है. Perfect. Common side कौन सा है बोलो? OB, and their interiors are disjoint. Is it very clear to all of you? Very good. Awesome, kids. Super. मजा आ गया यार तुम लोग को पढ़ा के. The way you are responding, that's great. So हमने adjacent angles discuss किया. अब second जो discuss कर रहे हैं linear pair angles. Now linear pair मतलब जोड़ी. Is it very clear to all of you? Now linear pair होने के लिए सबसे पहला condition, ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूं, सबसे पहला condition linear pair होने के लिए the two angles must be adjacent angles. I repeat again, ध्यान से सुनना. Linear pair मतलब जोड़ी, and linear pair होने के लिए वो जोड़ी adjacent angles का ही होना चाहिए, compulsory. ये देखो हाईलाइट कर दिया है. Two adjacent angles. अगर adjacent angles होंगे और linear pair फॉर्म कर रहे हैं, ओके, मतलब कोई भी दो एंगल्स linear pair फॉर्म नहीं कर सकते. लीनियर पेयर होने के लिए दो एंगल कंपलसरी एडजेसेंट ही होने चाहिए. तो ये एडजेसेंट एंगल्स कब लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड. नाउ वी हैव अ फिगर इन फ्रंट ऑफ अस. जो फिगर ये बताता है कि ये एडजेसेंट एंगल्स है. एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स. बराबर है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था. So can we say they are linear pair angles? No. Adjacent तो है, but linear pair होने के लिए इसमें और कुछ चेंजेस होना चाहिए. तो क्या चेंजेस है ध्यान से देखते हैं. लीनियर पेयर होने के लिए सबसे पहले उनके नॉन कॉमन रेस पर ध्यान देना. नॉन कॉमन रेस, कॉमन रे नहीं है, नॉन कॉमन रेस. नॉन कॉमन, कॉमन कौन सा है? साइड OB कॉमन है. तो नॉन कॉमन कौन से हुए? नॉन कॉमन हुए साइड OA एंड साइड OC. ये नॉन कॉमन रेज. अब इनके बारे में क्या? ये नॉन कॉमन रेज शुड फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज. दे शुड फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज. ऑपोजिट मतलब एक अगर लेफ्ट में जा रहा है तो दूसरा राइट में जाना चाहिए. एक अगर ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जाना चाहिए. Are you understanding it? तो अगर आप ध्यान से देखो तो रे OA लेफ्ट में ऊपर की तरफ जा रहा है और रे OC साइडवेज जा रहा है. तो ये ऑपोजिट नहीं बोल सकते. ऑपोजिट मतलब एग्जैक्टली उल्टा डायरेक्शन. इज इट वेरी क्लियर? तो ऑपोजिट होने के लिए रे OA को हमने नीचे टिल्ट कर दिया. अब वो बिल्कुल रे OC के ऑपोजिट डायरेक्शन में है. I repeat again, रे OA अभी रे OC के ऑपोजिट डायरेक्शन में है. So these non-common rays form a pair of opposite rays. अब ऑपोजिट रेज मतलब सिंपल, दोनों रे ऐसी दिशा लेना चाहिए कि एक लाइन दिखे. तो अभी रे OA और रे OC से लाइन ऐसी दिखाई देता है. So ऐसा जब फिगर बनता है, we say the two adjacent angles are forming linear pair. Is it very clear to all of you? So students, linear pair angles का definition है. Linear pair angles होने के लिए सबसे पहला condition, angles should be adjacent angles. बराबर है? So that's why शुरुआती वैसे किया. देखो, two adjacent angles. Two angles नहीं है, I repeat,
two angles nahi, two adjacent angles are said to form a linear pair if their non-common rays form a pair of opposite rays. I hope आपको definition समझा है. तो non-common rays कैसे होने चाहिए? Opposite rays होने चाहिए, तो ही हम बोल सकते हैं कि ये angles linear pair angles है. Is this very clear to all of you? पक्का? अब linear का मतलब क्या? Linear का मतलब the two angles form a line. मतलब दोनों एंगल्स के ऑपोजिट रेज ने एक लाइन बनाया है, एंड लाइन के वजह से नाम आया है लीनियर. इज इट वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू? फाइन. सो आगे हम बोल सकते हैं रे ओ ए रे ओ सी एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों लाइन बनाते हैं. इज इट वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू? सो एंगल एओबी एंड एंगल बीओसी आर द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर. क्लियर? अब लीनियर पेयर एंगल्स का अगर मेजरमेंट करेंगे टोटल, तो टोटल हमेशा होता है 180 डिग्री. द सम ऑफ द मेजर ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री. मतलब अगर लिखना हो तो मैथ्स में कैसे लिखेंगे? एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. याद रखना, लीनियर पेयर एंगल्स का टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है. मतलब अगर मैं आपको पूछूं लीनियर पेयर एंगल्स मैथ्स में कैसे लिखोगे? आई रिपीट माय क्वेश्चन अगेन, ध्यान से सुनना. अगर मैं आपको पूछूं लीनियर पेयर एंगल्स मैथ्स में कैसे लिखोगे, तो यू शुड से फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल क्यों? बिकॉज हमेशा तो नाम AOB COD नहीं रहेगा, नाम XYZ LMN कुछ भी हो सकता है. तो अकॉर्डिंगली वी शुड नेम फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो कभी भी याद रखना, henceforth अगर आपको टीचर ने पूछा what do you mean by linear pair angles, your answer should be first angle plus second angle is equal to 180 degree. I hope all of you have understood this. Perfect. Yes. I want all of you to write down this definition. Write down the definition for linear pair angles and draw this figure. Even drawing the figure is finished. Done. Okay, fine. Write down this as well. This is the property of linear pair angles. मतलब अगर किसी भी टीचर ने आपको पूछा लीनियर पेयर एंगल्स का मतलब क्या, तो आपको बताना है फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. Madhura Dalvi, superb. You have written first angle plus second angle is equal to 180 degree. Very good.
Samskar, whatever you are mentioning, that's the definition. Very good. If the non-common ray form a pair of opposite rays. Okay, fine. Now students, let us move further. Now, we know we have been using this concept right from 8th standard, supplementary angles. Okay. Now, what do you mean by supplementary angles? Because many of the times students get confused with supplementary angles and linear pair. Please understand. Supplementary angles means again two angles, because we are discussing about pairs of angles. So supplementary angles मतलब दो angles. But supplementary कब बोलते हैं? Supplementary तभी बोलते हैं if the sum of measures of two angles is 180 degree. तो confusion ये होता है कि सर लीनियर पेयर में भी तो एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स अलग से नाम क्यों? प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था लीनियर पेयर मतलब एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है. एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 तो लीनियर पेयर. सप्लीमेंट्री में ऐसा जरूरी नहीं है. सप्लीमेंट्री में आप कोई भी दो एंगल्स ले सकते हो, कोई भी दो, जरूरी नहीं कि वो एडजेसेंट हो. लुक इन द फिगर. एंगल एओबी एक एंगल है और एंगल XYZ एक एंगल है. ये दोनों अलग अलग एंगल है. ये दोनों एंगल्स का कोई साइड कॉमन नहीं है, वर्टेक्स भी कॉमन नहीं है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं हुए. बट दोनों एंगल्स का टोटल करके देखो, पहला एंगल 40 डिग्री है, दूसरा एंगल 140 डिग्री है, तो टोटल कितना होता है? 180 डिग्री. अगर कोई भी दो एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता हो, we say the two angles as supplementary angles. So देखो क्लियरली मेंशन किया है, if the sum of measures of two angles, कहीं पर भी adjacent नहीं बोला है. Is it very clear to all of you? Okay, now something very important I want you to understand. These angles are called supplementary, जिनका total 180 होता हो, and each of them is said to be supplement of the other. मतलब एंगल AOB का supplement कौन है? एंगल XYZ. और एंगल XYZ का supplement कौन है? एंगल AOB. Is it very clear to all of you? So they are the supplement of each other. सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. देखो नॉर्मली ना कोई इतना प्रिसाइज नहीं बताता आपको. नॉर्मली आपको टीचर्स पूछेंगे व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, आप बोलते हैं आंसर 180 डिग्री. Please don't make that mistake of giving the answer. Supplementary angles मतलब 180 डिग्री नहीं. Supplementary angles मतलब the sum of two angles is 180 डिग्री. समझा मैंने क्या बोला? अगर आप बोलोगे supplementary angles मतलब 180 डिग्री, इसका मतलब एक ही एंगल हुआ 180 डिग्री. Never say that way. Supplementary angles मतलब sum of the measures of two angles is 180 degree. Is it very clear to all of you? Please remember this. बहुत बार 180 डिग्री बोलना बहुत इजी है, बट जैसे आप बोलते जाते हो फिर दिमाग में कंसेप्ट भी वैसे ही बैठता है. So always make a habit of speaking it right way. So supplementary angles मतलब sum of measures of two angles is 180 degree. थोड़ा लंबा बोलना पड़ता है, बट हमेशा के लिए सही हो जाता है. Is it clear? Yes, Sampreet, that's very good. You have written awesome. Okay. So here measure angle AOB plus measure angle XYZ is equal to 180 degree. So we say angle AOB and angle XYZ are supplementary angles and they are supplement of each other. Is it very clear to all of you all? Perfect. Yes. I want you all to write down supplementary angles का definition. बस और ये figure. Piyush Jain, wait, I will answer your query.
Finished? Krutika Madolkar from Ghatkopur, please text your doubt so that I will clarify your doubt, okay? Okay, now students, पीयूष ने एक डाउट पूछा था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स फिर एडजेसेंट एंगल्स नहीं होते क्या? नहीं, आई विल एक्सप्लेन इट यू नाउ। देखो, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या? सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब दो एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होना चाहिए, फिर वो दो एंगल कैसे भी होंगे तो चलेगा। लीनियर पेयर सेज दो एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होना चाहिए, बट दो एंगल कंपलसरी एडजेसेंट होना चाहिए। समझा आपको? तो सप्लीमेंट्री में थोड़ा लिबर्टी है, कोई भी दो एंगल्स हो, अगर टोटल 180 है तो वो सप्लीमेंट्री है, बट लीनियर पेयर बोलने के लिए लिबर्टी नहीं है। लीनियर पेयर के लिए दो एंगल कंपलसरी एडजेसेंट होनी चाहिए। तो लेट अस हैव दिस फिगर इन फ्रंट ऑफ अस। अब इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे, इस फिगर में ये दोनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री है। 120 प्लस 60 180 डिग्री हो रहा है। अब टोटल 180 हो रहा है तो सप्लीमेंट्री है ही है, बट साथ ही साथ ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स है। तो एडजेसेंट एंगल्स है तो लीनियर पेयर हुए, मतलब ना लीनियर पेयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री। So adjacent angles also can be supplementary angles. Is this very clear to all of you? Now please understand, supplementary angles मतलब कोई भी दो एंगल्स का टोटल 180 होना चाहिए, फिर वो एडजेसेंट हो या एडजेसेंट नहीं भी हो तो भी चलेगा। लीनियर पेयर में कंपलसरी एडजेसेंट होना चाहिए। तो अगर आप सेकेंड फिगर देखोगे तो सेकेंड फिगर में उनको आप सप्लीमेंट्री एंगल्स तो बोल ही सकते हो, बट इनको आप और क्या बोल सकते हो? लीनियर पेयर बोल सकते हो, बिकॉज दे आर एडजेसेंट एज वेल। इज इट वेरी क्लियर ऑफ यू? सो लीनियर पेयर एंगल्स कैन आल्सो बी कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके पीयूष, आई थिंक योर आंसर इज क्लियर। ओके Krish, thank you very much. Okay, now no need of drawing the second figure as well. Okay, आपने पहले तो 40 डिग्री और 140 ड्रॉ किया होगा, बस काफी है। लीनियर पेयर इट इज अंडरस्टूड। ओके ओके, गाता पारेख from VK branch, please put your doubt in the text so that I can understand while teaching. Now complementary angles. Now if it comes in the exam, okay, supplementary linear pair, आपको जरूरत टेंशन लेने का नहीं है। आप बस फिगर देखो, अगर लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर बोलोगे तो काफी है, अगर उसको सप्लीमेंट्री बोलोगे तो नहीं चलेगा। हाँ, बट जब अलग अलग दो एंगल्स का टोटल 180 है तभी सप्लीमेंट्री बोलना है। ओके, एंड जो भी एग्जाम्स में आएंगे वो सारे सम ऑलरेडी कर चुके हैं। If the sum of measures of two angles is 90 डिग्री, जैसे सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री होना चाहिए। अगेन आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, फिर वो दो एंगल्स कैसे भी हो, अलग अलग हो, एडजेसेंट हो, कैसे भी हो, दो एंगल्स होने चाहिए। So then these angles are called complementary angles and they both are called complement of each other. मतलब हर एक को दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे सप्लीमेंट्री में हर एक को दूसरे का सप्लीमेंट बोलते हैं, वैसे कॉम्प्लीमेंट्री में हर एक को दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। याद रखना, सप्लीमेंट्री में दोनों एंगल्स का टोटल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, एंड कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल्स का टोटल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री।
Is it clear to all of you? Now students look at this figure. Angle AOB, इसका मेजर कितना है 40 डिग्री. एंगल XYZ इसका मेजर कितना है 50 डिग्री. चलो दोनों एंगल्स को ऐड करो, दोनों एंगल्स का टोटल कितना हो रहा है 90 डिग्री. अगर दोनों एंगल्स का टोटल 90 डिग्री है, we say the two angles are complementary angles. Is it very clear to all of you? Perfect. अब so these angles are complementary angles and they are said to be complement of each other. अब और एक फिगर देखना. अब इस फिगर में आप क्लियरली देखोगे 60 डिग्री वाला एंगल और 30 डिग्री वाला एंगल दोनों एक दूसरे के बगल में, बाजू में, because side MP is a common side, M is a common vertex, so these two angles are adjacent angles. So 60 डिग्री 30 डिग्री adjacent है, दोनों का टोटल 90 डिग्री हो रहा है, फिर भी इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, बिकॉज इनको अलग से कुछ नाम नहीं है. जैसे सप्लीमेंट्री के एडजेसेंट एंगल्स हो तो उनको नाम है लीनियर पेयर, वैसे कॉम्प्लीमेंट्री में एडजेसेंट एंगल्स का अलग से कोई नाम नहीं है. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर होंगे तो एडजेसेंट एंगल्स को भी कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस. क्लियर? ओके, राइट इट डाउन. Just write down the definition and draw the figures. That's it. नीचे का टोटल 90 डिग्री ये सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है. Just need to know. Okay. Now, very interesting pair of angles, vertically opposite. Okay. Now, vertically opposite angles. Okay. If any student has left out with the drawing part, you can do it later on because many of them have said. So I've moved ahead. Okay. So vertically opposite angles को अगर ध्यान से समझना है तो definition ठीक से समझना जरूरी है. Now, two angles are called vertically opposite angles if कुछ conditions है वो satisfy होनी चाहिए. Now, please see this condition. If their sides form two pairs of opposite rays. Now, ये थोड़ा सा समझने के लिए हमेशा हर साल बच्चे तुला बोलते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा है. मुझे बताना एक एंगल में कितने साइड्स होते हैं? एक एंगल में दो साइड्स होते हैं, तो दो एंगल के चार साइड्स होंगे. समझ में आया? एक एंगल के दो साइड्स होते हैं तो दो एंगल के चार साइड्स होंगे. तो हर एक एंगल का एक साइड दूसरे एंगल के दूसरे साइड का ऑपोजिट रे होना चाहिए. अगर मैं ज्यादा बोलूं तो कंफ्यूज हो जाओगे, इससे बेटर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं. तो अगर आप ध्यान से देखोगे एंगल AOD को ध्यान से देखना, O कॉमन वर्टेक्स है. अगर साइड OC देखोगे, साइड OC या रे OC देखोगे तो बताना रे OC का ऑपोजिट रे कौन है? यस, ऑपोजिट रे है रे OD. अगर रे OA देखे, रे OA, तो रे OA का ऑपोजिट रे कौन है? रे OB. सो यहां पर क्या होता है ना, दो एंगल के दोनों साइड्स दे फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज. सो टू एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इफ देयर साइड्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट रेज. टू पेयर्स मतलब रे OA एंड रे OB एक जोड़ी हो गया, रे OC एंड रे OD दूसरा जोड़ी हो गया, इसलिए टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट रेज. ये डेफिनेशन ही आपको एज इट इज समझना है.
इसमें चेंजेस मत करना वर्डिंग्स में. So two angles are called vertically opposite angles if their sides form two pairs of opposite rays. Is it very clear to all of you? Yes, ये definition as it is लिखना है. चलो, write down the definition and draw the figure fast. Finished? Okay, Sarvesh, I will clarify your doubt too now. Sarvesh Shinde from Ghatkopar. Okay. Now, Sarvesh is asking, what can you say about the two vertically opposite angles? Yes, vertically opposite angles will always be equal in measure. ये दोनों एंगल्स है ना जो हाईलाइट किए हैं, एंगल AOC एंड एंगल BOD, ये दोनों एंगल का मेजर हमेशा इक्वल होता है. Is it clear to all of you? Of course, we are going to explain that later on. ये definition था सिर्फ. So angle AOC and angle BOD are vertically, but सिर्फ यही दो जोड़ी vertically नहीं है. अब दूसरे दो जोड़ी भी आपके सामने हाईलाइट हो रहे हैं. दूसरा दो जोड़ी का नाम बोलो, कम ऑन, टेक्स्ट में टाइप करो. कम ऑन, टाइप करो दूसरे दो जोड़ी का नाम. दो जोड़ी, आप एक ही एंगल टाइप कर रहे हो. दो जोड़ी, दो जोड़ी मतलब एक जोड़ी. आई एम सो सॉरी, दो एंगल्स एक जोड़ी. Yes, few of them are typing wrong, few of them are giving the answers right. देखो, अब सेकेंड जोड़ी कौन सा हुआ पता है? सेकेंड जोड़ी ये हुआ, एंगल AOD एंड एंगल COB. ये दूसरा जोड़ी हो गया. ओके, एंगल AOD एंड एंगल COB. पहला जोड़ी कौन सा था? एंगल AOC एंड एंगल BOD. So when the two angles are vertically opposite angles, but then vertically opposite जब होता है, please understand students, अगर आप फिगर ध्यान से देखोगे तो फिगर में एकदम क्लियरली दिखता है, the two lines are intersecting each other. If two lines are intersecting lines, we get vertically opposite angles. तो vertically opposite angles कैसे? दो जोड़ियां मिलेंगे आपको, तो जो जोड़ी हमको चाहिए वो जोड़ी हम ले सकते हैं. ओके, इज दिस क्लियर? फाइन. नाउ it's very important that we have to study the proof of vertically opposite angles. Now please understand this. Vertically opposite angles, अब मैंने बोला, किसी ने पूछा, सर्वेश शिंदे ने पूछा था, what do you know about vertically opposite angles, are they equal? मैंने बोला हाँ, are they equal. पर आप मान कैसे लोगे? मैंने बोला करके इक्वल तो नहीं हो सकता, वो प्रूफ करके देखना चाहिए. तो लेट अस सी. ओके, so vertically opposite angles कब होते हैं? Two lines intersect each other, then vertically opposite angles are congruent. ये प्रूफ है, मतलब आपको एग्जाम में ऐसे ही सेंटेंस आ जाएगा, प्रूफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का ही स्टेटमेंट. तो आप शुरू कैसे करोगे? सबसे पहले आपको समझना ये जरूरी है. इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब लेट अस हैव द फिगर. सबसे पहले we'll draw line AB and then we'll draw line CD. They both intersect each other at O. So ये अपना गिवन कंडीशन है, दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं. सो गिवन में क्या लिखोगे? लाइन AB एंड लाइन CD intersect each other at point O. Is this very clear to all of you? याद रखना, there are two lines and they intersect each other at point O.
आगे. Now